السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں آڈیو کتب خانہ، جس میں ہم ایم اے راحت کا اردو ناول کالا جادو کی آڈیو پیش کر رہے ہیں۔ جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ اچھی کتابوں کی آڈیو اب تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ خاصی اونچی چھلانگ تھی اور ایک لمحہ گزرنے والا تھا کہ میں اس پر جا پڑا، لیکن میرے اور اس کے درمیان نہ جانے کیا چیز حائل ہو گئی تھی۔ نہ جانے وہ کیا تھا، میں خلا میں ہی معلق رہ گیا۔ میں نے ہاتھ پاؤں مارے تو میرے ہاتھ پاؤں جیسے کسی لیس دار چیز میں جکڑے چلے گئے۔ تب میں نے اس لیس دار چیز کو دیکھا، موٹی سی رسی کی مانند بے رنگ جالے تھے، مکڑی کے جالے، لیس دار بدن سے چپک جانے والے، اتنے مضبوط کہ انہوں نے میرے جسم کا پورا بوجھ سنبھال لیا تھا۔ میں ان لیس دار جالوں سے لٹک کر بے بس ہو گیا۔ جتنے ہاتھ پاؤں چلائے اتنے ہی یہ جالے مجھ سے لپٹتے چلے گئے، اور پھر یہ کیفیت ہو گئی کہ میں جنبش بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، بھوریا چرن مجھے نظر آ رہا تھا۔ وہ اسی طرح پاؤں پھسلائے مجھ سے بے تعلق بیٹھا ہوا تھا۔ یہ گھناؤنے لیس دار جالے چھت سے لے کر زمین تک پھیلے ہوئے تھے، اور بے رنگ ہونے کی وجہ سے میں انہیں نہیں دیکھ سکا تھا۔ پھر ان جالوں پر کوئی شے متحرک نظر آئی۔ اس طریق سے میرا بدن بھی جالوں میں لپٹا ہل رہا تھا۔ یہ مکڑیاں تھیں، 10-11 مکڑیاں جو ان جالوں پر نمودار ہوئی تھی، اور اپنی پیلی بدنما آنکھوں سے مجھے گھوری ہوئی مختلف سمت سے چلتی ہوئی میری سمت بڑھ رہی تھی۔ ان کا حجم کوئی ایک بالشت کا ہوگا۔ میں ان کے پورے جسم کو دیکھ سکتا تھا۔ بھوریا چرن نے کہا، یہ میرے بیر ہیں، میری حفاظت کرتے ہیں۔ میں جاگ رہا ہوں یا سو رہا ہوں، یہ میرے لیے جاگتے رہتے ہیں۔ تم ایسا کبھی مت سوچنا، میرا کچھ نہیں بگڑے گا، تمہیں نقصان ہو جائے گا۔ اگر ہاتھی بھی میری طرف بڑھے تو یہ جالے اسے لپیٹ لیں اور وہ ہل نہ پائے۔ یہ بیر اسے آنکھ جھپکتے چٹ کر جائیں۔ یہ کالا جادو ہے بالک، کوئی بچوں کا کھیل نہیں۔ مگر کیا کروں، تیرے باغ ہی خراب ہے، دھرم کی رٹ لگائے ہوئے ہے۔ ارے شکتی ہی دھرم ہے، مایا شکتی ہو یا کایا شکتی، اس کے بنا کچھ نہیں ہوتا۔ کیا دے گا تیرا دھرم تجھے، کیا بگاڑ لے گا تیرا دھرم میرا گیان مہان ہے۔ چاند خان پر تیرا جادو کیوں نہ چلا، ان کا کچھ کیوں نہ بگاڑ لیا تو نے۔ اس تویز کے پاس جاتے ہوئے تیری جان کیوں نکلتی تھی۔ بھوریا چرن، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور وہ مکرو ہنس پڑا۔ وہ کہاں جیتا ہے، 60-70 اور لے مرا اپنے ساتھ۔ اس نے کہا، مجھے اس مزار پر جانے دے، پھر تیری شکتی دیکھوں۔ خطرناک راستے بند کرنا بھی عقل مندی ہے، اور عقل بھی ایک شکتی ہوتی ہے بولے۔ اب بھی مان لے، میری چھوٹا سا کام ہے، بہت چھوٹا سا، اس کے بدلے تجھے جو کچھ ملے گا تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ بھاگن دوار پہنچا دے مجھے، بس ایک ہی بھونا ہے من میں، بدل میں بتا دے کیا چاہیے۔ جیون بھر کا سکھ، شانتی، دھن دولت کے ڈھیر، سنسار جھکا دوں گا تیرے چرنوں میں۔ جو مانگے گا دوں گا، بول کے تو دیکھ۔ بھوریا چرن، اتنا کچھ ہے تیرے قبضے میں نے کہا۔ اس سے بھی زیادہ بالک، اس سے بھی زیادہ۔ بھوریا چرن نے جیون بھر کیا کیا ہے، ساری عمر گیان لینے میں بتا دی ہے، بڑے بڑے رشی مینوں کے چرنوں کی دھول پھانکی ہے، اور اب سمے آ گیا ہے کہ وہ کسی خوش آئند خیال میں کھو گیا، پھر چونک کر بولا، ہٹو اس کے پاس سے، آجا بچے نیچے اترا۔ اور اچانک میں جالے کی گرفت سے آزاد ہو گیا۔ مکڑیاں واپس چلی گئی تھی۔ بھوریا چرن، اتنا کچھ ہے تیرے قبضے میں، اور تو سیڑھیاں چڑھ کر پیر بھاگن کے مزار تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے لیے تجھے کسی اور کا سہارا چاہیے۔ میں نے طنزیہ کہا، اور اس کا چہرہ آگ ہو گیا۔ یہ تیرے سوچنے کی بات نہیں ہے بھوریا چرن، تیرا گندا علم ہے، سفلی علم ہے، ناپائیدار ہے، اور وہ ایک پاک بزرگ کا مزار ہے۔ میں نہیں جانتا کہ تو وہاں کیوں جانا چاہتا ہے، لیکن ایک بات ضرور جانتا ہوں، تیرا ناپاک وجود اس پاک جگہ نہیں جانا چاہیے۔ کم از کم میں اس کا ذریعہ نہیں بنوں گا۔ ہم مقدس جگہوں کا احترام اپنی زندگی سے زیادہ کرتے ہیں۔ وہ تیش کی عالم میں کھڑا ہو گیا۔ ہیرے کتے کی پونچھ، ارے تیری ٹیڑھ تو ہم ایسے نکالیں گے کہ تو یاد رکھے گا۔ جا مر، بھاگ جا یہاں سے، اپنی ضد کے مزے چکھ، ٹھیک ہوگا، خود ٹھیک ہوگا، اللہ مالک ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں نے کہا، اور بھوریا چرن دندناتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ میرے لیے اب وہاں رکنا بیکار تھا، چنانچہ میں بھی مکان سے باہر نکل آیا۔ دماغ سنسنا رہا تھا، خیالات پریشان تھے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، خیالات میں ڈوبا جا رہا تھا کہ راستے میں شکتنا نظر آئی۔ کالج کی یونیفارم میں تھی، مجھے نہیں دیکھ پائی تھی، پتہ نہیں کہاں سے آ رہی تھی، ہو سکتا ہے تعلیم حاصل کرتی ہو۔ گھر واپس آ گیا، پاؤں خود بخود یہاں لے آئے تھے، اور کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد وہی شام، وہی معمولات۔ مہمانوں کے لیے پھولوں کے ہار لینے نکلا تھا
कि तमाशबीनों में एक सूरत नजर आई और सारी जान आंखों में खिंच आई। आह, क्या ये मामू रियाज ही है? आंखें धोखा तो नहीं दे रही थी। ये इन सूरतों में से एक सूरत थी जो आंखों की हसरत बन चुकी थी। मामू रियाज हमारे मामू ही नहीं, दोस्त भी थे। इतना अच्छा वक्त गुजरा था इनके साथ के अब याद भी आता तो यकीन नहीं आता था। मगर वो तन्हा नहीं थे, इनके साथ 3 और आदमी भी थे। एक लंबे तड़ंगे नवाबों जैसे हुलिया के साहब, बारीक मलमल का कड़ा हुआ कुर्ता पहने, सिल्क की शेरवानी जिसके सारे बटन खुले हुए थे, दूध जैसा सफेद रंग, तलवार कट स्याह मूछें, सर पर काली तिरछी टोपी, चौड़ीदार पजामा जिसमें कलाबतों के फुंदने वाला अजार बंद, जिसका फुंदना कुर्ते से नीचे वार्निश का लूफर शू जिसकी चरचर शोर के बावजूद सुनाई दे रही थी। होंठों पर पान की दड़ी जमी हुई। दूसरे 2 भी किसी हद तक ऐसे ही लिबास में थे। अलबत्ता मामू रियाज सलवार कमीज पहने हुए साफ सुथरे नजर आ रहे थे, मगर इन साहब के साथ चलते हुए इनका अंदाज भी मुअद्दबाना नजर आता था। दिल ने पूरा यकीन कर लिया कि ये मामू रियाज ही हैं। बदन में भरीरी सी आई, पांव आगे जमे, जी चाहा दौड़ कर लिपट जाऊं, इतना रहूं कि आंखें आंसुओं के साथ बह जाएं, मगर अक्ल ने रोका। अपने बारे में कुछ अंदाजा है मसूद? हाथ में फूलों के हार के पड़े हुए डब्बे हैं, एक बुरी जगह रहता है, हराम की कमाई पर जी रहा है। क्या लग रहा है इसका इल्म है? और फिर इसके बाद क्या होगा? वही सब कुछ न जिससे बचना चाहता है। आह, मगर मामू को कैसे छोड़ सकता हूँ? पता तो लगे कि वो शक्तिपुर में कब आए, अम्मी और अब्बा कहाँ हैं, सब कैसे हैं? इन्हें महमूद के बारे में बताऊं, न जाने अम्मी और अब्बा का क्या हाल होगा। रत्ना, किसी ने मुझे पुकारा और मैं चौंक पड़ा। घूम कर देखा, मालती थी। यहाँ खड़े सो रहे हो, वहाँ रमा रानी इंतजार कर रही है तुम्हारा। मालती, तुम ये हार ले जाओ, मुझे कुछ काम है। अरे लेकर जाओ दौड़ते हुए, मैं दूसरे काम से जा रही हूँ, मालती ने कहा और गर्दन झटक कर आगे बढ़ गई। मैं रुककर इन लोगों को देखता रहा। वो सामने वाले कोठे की सीढ़ियां चढ़ने लगे। ये इत्मीनान हो गया कि वो लोग बेलावती के मेहमान हैं। पहले हार दे आऊं, इसके बाद आ जाऊंगा और फिर कुछ सोचूंगा। तेजी से आगे बढ़ा। ऊपर पहुंचा तो शरीर कशना नजर आई। जर्क बर्क जोड़ में मलबूस, सुर्खी पाउडर से सजी हुई आंखों में काजल के डोरे सजे हुए। गजरे लाए हो? इसने पूछा। हाँ, इसमें है, ये संभालो, मुझे कुछ काम है। मैंने इसे पड़े देने की कोशिश की और वो पीछे हट गई। मुझे भी काम है, मेरे साथ आओ। कृष्णा ले लो जल्दी से, बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैंने आजिज़ी से कहा। ना रतन जी, आओ, मुझे भी काम है तुमसे। मालती नहीं है, वरना तुम्हें तकलीफ न देती। वो वापस मुड़ गई। रमा रानी, राधा और लक्ष्मी हाल के कमरे में थीं, जहाँ तबले की थाप और सरंगी के साथ घुंघरू छन छन कर रहे थे। मजबूरन मैं कृष्णा के साथ कमरे में दाखिल हो गया। कृष्णा ने पड़े खोले, गजरे निकाले और फिर मोतिया के फूलों की एक हार मुझे देकर बोली, इसे मेरे बालों में सजाओ। कृष्णा, मैंने फिर खुशामद की। बांध दो रतन, फूल लगाने से तुम पति नहीं बन जाओगे मेरे। चलो लगाओ। मुझे अंदाजा था कि वो मुझे ऐसा नहीं छोड़ेगी। मजबूरन इसके बालों में फूल सजाए। इसने कलाइयों के गजरे उठाकर मुझे दिए। इन्हें मेरे हाथों में सजाओ। तुम मुझ पर जुल्म कर रही हो कृष्णा, तुमने भी तो हम पर जुल्म कर रखा है, न जाने कब से। बांधो भाई, देर हो रही है। खासी देर लगी। इससे पीछा छुड़ाकर मैं फिर नीचे भागा। पूरी गले में नजर दौड़ाई, वो लोग नजर नहीं आ रहे थे। इत्मीनान हुआ कि वो बेलावती यानी शंकतना के कोठे पर हैं। अब क्या करूं? क्या ऊपर चला जाऊं? मगर फिर क्या करूंगा? मामू के सामने इस तरह नहीं जाना चाहता था, न जाने क्या हो जाए। जरा भी किसी को अंदाजा हो गया मेरे बारे में तो शायद इस बार पुलिस मुझे गिरफ्तार करने की जहमत भी न करे। देखते ही गोली मार दी जाएगी, क्योंकि अब मैं सिर्फ 2 आदमियों का कातिल नहीं था, बल्कि पुलिस के 2 अफराद भी मेरे हाथों मारे जा चुके थे। वो तो शुक्र था कि पागल की हैसियत से न जाने कैसे यहाँ वक्त गुजारता रहा था और किसी को पता नहीं चल सका था। अभी तक तो महफूज था, लेकिन कमीना सिफ्त भूरिया चरण की एक हल्की जुम्बिश मुझे फिर मुसीबतों में गिरफ्तार कर सकती थी। इसका खौफ तो लम्हा लम्हा रहता था। मेरे साथ जो भी होगा अजाब में गिरफ्तार हो जाएगा। न जाने बेचारे मामू रियाज क्या कर रहे हैं और किस तरह ये लोग अपने आप को महफूज रखे हुए हैं। मामू रियाज की जो झलक देखी थी, इससे ये अंदाजा होता था कि बहुत ज्यादा बेकसी का शिकार नहीं है। मगर कहाँ है, क्या कर रहे हैं, शक्तिपुर में कैसे आना हुआ, क्या यहीं रहते हैं? ये सारी बातें जहन के पर्दों से टकरा रही थी। फैसला किया कि जब वो नीचे उतरेंगे तो इनका पीछा करूंगा, ये देखने की कोशिश करूंगा कि कहाँ रहते हैं। बाद में सोचा जाएगा कि क्या कदम उठाना है। इस बात पर दिल जम गया था। बहुत देर तक पूरी गली के चक्कर लगाता रहा। यहाँ जो कुछ होता था
अब मेरी निगाहों से ओझल नहीं था। इन लोगों के फौरी तौर पर नीचे आने का इम्कान नहीं था। अगर रक्स की महफिल जमी गई तो रात के 12 ही बजेंगे। कुछ भी हो जाए, मेरे लिए इससे ज्यादा कीमती काम और क्या हो सकता था। फतेह मोहम्मद पटवारी की दुकान पर रुक गया और दुकान के करीब लगे हुए बिजली के खंभे के नीचे जो एक सीमेंट का थड़ा सा बना हुआ था, इस पर बैठ गया। फतेह मोहम्मद के हाथ बरक रफ्तारी से चल पड़े थे और वो पानों का अंबार लगाए जा रहा था। ग्राहक आते फतेह मोहम्मद इनसे तरह तरह की बातें करता और पानों की गलोरियां बनाकर इन्हें पेश कर देता। इसकी चर्प जबानी सुनने के काबिल थी। थोड़ी देर के लिए ग्राहकों का तोड़ा हुआ था तो इसने मुझे देखा और बोला, भाई रतन लाल जी, आज यहाँ कैसे बैठे हो? उदास उदास से। झगड़ा हो गया घर में किसी से? मैं इसे बात नहीं करना चाहता था, लेकिन जब इसने बात की तो जवाब देना ही जरूरी था। मैंने फीकी सी हंसी हंस कर कहा, मेरा किससे झगड़ा होगा भाई फत्तू? हो भी सकता है। वैसे एक बात अपनी खोपड़ी में ऐसी अटकी हुई है कि खोपड़ी का भूसा निकल गया है। सोच रहे थे कि तुमसे पूछेंगे, जब भी हाथ लगोगे जरूर पूछेंगे। क्या भाई फत्तू? मैंने पूछा। यार इस दिन जब तुम हमसे बातें कर रहे थे तुम्हारे मुंह से अचानक मेरे खुदा निकला था। ये क्या चक्कर है? तुम तो हिंदू हो ना? मैं हैरान रह गया। मेरे फरिश्ते को भी गुमान नहीं था कि ऐसी कोई बात होगी। यकीनन हुआ होगा, ऐसा ही हुआ होगा, मगर क्या जवाब दूं इसको? खामखा हंस पड़ा। फतेह मोहम्मद बहुत ज्यादा गहराइयों में नहीं जाते। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनका पर्दे में रहना ही अच्छा होता है। लो और सुनो। अम्मा, क्या हम किसी से कहने जा रहे हैं? यार नहीं हो हमारे? बस जरा सा ये बता दो कि तुम्हारे मुंह से भगवान भगवान क्यों नहीं निकला। बता देंगे फतेह मोहम्मद, किसी फुर्सत के वक्त बता देंगे। लो घंटा भर से यहाँ बैठे हुए हो, फुर्सत नहीं है तुम्हें? अम्मा, क्या किसी का इंतजार कर रहे हो? हाँ यही समझ लो। किसका? फतेह मोहम्मद ने कहा। शुक्र था कि कुछ गाहक इसकी दुकान पर आ गए। मैं इसे जवाब नहीं देना चाहता था। वो गाहकों में उलझा तो मैं आहिस्ता से इसकी दुकान पर से उठ गया और इसके बाद वहां से काफी दूर चला गया। मेरी निगाहें कोठे पर लगी हुई थीं। वक्त गुजरता रहा। बैठे बैठे और घूमते घूमते पूरा बदन थक गया था। अचानक ही मालती मुझे तलाश करती हुई पहुंच गई। ये तुमने तो मार ही डाला रतन लाल जी, कहाँ चले गए थे? अरे चलो, बुला रही हैं, क्या काम है? मैंने जलाए हुए लहजे में पूछा। वो तुम भी मुझे ही डांट रहे हो, इधर से भी डांट पड़ रही हो और उधर से भी। अब काम तो तुम्हें रमा नहीं बताएंगी, हम क्या बताएं? तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। साथ चलो, यही कहा है इन्होंने। मैं दांत पीसता हुआ मालती के साथ वापस चल पड़ा। बेहतर ये था कि किसी ऐसी जगह रूपोश हो जाता जहाँ से कोई मुझे देख न पाता। खामखा ये लोग जहन खराब कर रहे हैं। घर वापस पहुंचा तो रमा रानी ने एक काम मेरे सुपुर्द कर दिया। मैं भला इनसे क्या कहता? कोई 10-15 मिनट मसरूफ रहना पड़ा और इसके बाद जैसे ही काम खत्म हुआ मैं मालती से कहकर वहां से भाग निकला। थोड़ी देर के बाद फिर मैं एक ऐसी जगह खड़ा इंतजार कर रहा था जहां से बेलावती के कोठे का दरवाजा साफ नजर आ रहा था। 12 बज गए थे। साजो आवाज खेल खत्म हो गया और मेहमान उतर उतर कर गली से बाहर खड़े हुए तांगों की जानिब बढ़ रहे थे। कुछ की अपनी मोटरें थीं और कुछ तांगों वगैरह पर आए थे, बाकी पैदल ही चल पड़े थे। लेकिन बेलावती के जीने से वो लोग नीचे न उतरे। मेरा दिल धक से होकर रह गया। बेलावती के कोठे से दूसरे बहुत से मेहमान नीचे उतरे थे। पता नहीं वो लोग कहाँ गायब हो गए थे। कुछ वक्त गुजारा तो मेरी परेशानी इंतहा को पहुंच गई और अब मैं अपने कदम नहीं रोक सका था। ये क्या हुआ? तेजी से सीढ़ियां चढ़ता हुआ अंदर पहुंचा। अंदर सारा साजो सामान समेट रहा था। एक ही अंदाज होता था इन कोठों का, जिंदगी के आगाज और इख्तिताम का। बेलावती ने मुझे देखा। इनके साथ कुछ और लड़कियां भी थीं। मुझे देखकर अजीब से अंदाज में मुस्कुराईं। शक्नता मौजूद नहीं थी। बेलावती ने नरमी से कहा, अरे रत्ना, तू आ गया? आ किसी काम से आया है? नहीं, वो बेला जी। अरे ये बेला जी क्या होती है? चाची जी कहता था तू मुझे। आज बेला जी कैसे कह रहा है? भूल गया मुझे? अरे रत्ना, मैं तेरी चाची हूँ। चाची समझा? हाँ चाची, वो कुछ काम था आपसे। रमा रानी ने भेजा है क्या? नहीं, मैं खुद आया हूँ। तो अंदर आ। ऐसे अजनबी की तरह बाहर क्यों खड़ा हुआ है? आ बैठ, बड़ी देर में आया। क्या बात है? कुछ मालूम करने आया हूँ बेला जी। फिर बेला जी? नहीं, मेरा मतलब है चाची जी। मैंने जल्दी से कहा। क्या मालूम करने आया है? और आज तू ये कैसा बहका बहकसा है? चल छोड़, क्या मालूम करने आया है? वो 4 मेहमान एक साथ आए थे, इनके बारे में मालूम करना चाहता हूँ। 4 मेहमान? बेलावती ने जहन पर जोर देकर कहा और फिर हंस पड़ी। फिर बोली, यहाँ तो 4 करके बहुत से मेहमान आए थे। नहीं, वो एक साहब तलवार मार का मूछें थी इनकी, काली टोपी पहने हुए थे, कुर्ता शेरवानी और ओहो, अच्छा समझ गई। हाँ, कहीं बाहर से आए हुए थे, शायद मुरादाबाद से। बेलावती ने कहा। वो तो चले गए। कब चले गए?
वो तो बहुत देर पहले उठ गए थे, थोड़ी देर बैठे थे, कोई घंटा 1.5 घंटा बैठे होंगे, मगर थे कोई रईस किस्म के आदमी। नाम नहीं पता इनका? पूछा था, नाम नहीं बताया। कहने लगे मुसाफिर हैं, नामों में क्या रखा है, बस फन के कदरदान हैं, फन देखने आए थे। शकनता को बहुत कुछ दिया है इन्होंने, अच्छे साहब हैसियत मालूम होते थे। ये आपको कैसे पता चला कि मुरादाबाद की हैं? बस यूं ही इन्होंने खुद ही बताया था। कहने लगे कि मुरादाबाद से आए हैं। आपकी धूम सुनकर हमने नाम भी पूछा मगर बताया नहीं। ओह, वो इनके साथ और लोग भी थे। हाँ, सब इनके मसाए मालूम होते थे, कोई अच्छे खासे नवाब वगैरह लगते थे, रईस आदमी थे। क्या वो मेरा मतलब है कि वापस मुरादाबाद चले गए? ले मुझे क्या मालूम, मगर तुझे इनकी खोज क्यों लगी हुई है? बेलावती ने कहा, नहीं चाची जी, बस ऐसे ही अजीब से लोग थे, न जाने क्यों जाने पहचाने से लग रहे थे, मालूम करना चाहता था कि कौन है। बेलावती ने गहरी निगाहों से मुझे देखा और बोली, ले मुझे क्या मालूम था, पता चल जाता तो नाम पता भी पूछ लेती इनका। अब इतना तो मुझे पता ही है, यहाँ न जाने कौन कौन आता है, बड़े बड़े 30 मार खां होते हैं इनमें, मगर हमें इनकी 30 मार खानी से क्या लेना देना। हमें तो बस इतना ही काम होता है, इनसे जितनी जरूरत हो। आप बैठ कुछ खाए पिएगा? नहीं चाची, बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने मायूसी से कहा। यकीनन इन दोनों लम्हात में कोई लम्हा इनके जाने का हो सकता था जब मुझे घर वापस जाना पड़ा था। सब पर गुस्सा आ रहा था। कृष्णा ने मुझे फूलों में उलझा लिया था और मालती मुझे बुलाने आ गई थी। आह, बहुत ही बुरा हुआ, बहुत ही बुरा।